بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں، ایک اللہ والی اور کتے سے جناح کا۔ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بستی میں ایک نیک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر اس بستی کا بہت ہی نیک سرپنچ تھا، لوگوں کے فیصلے بڑے ہی عدل انصاف کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی بیوی کے نیک نامی کے چرچے پوری بستی میں مشہور تھے۔ وہ ایک نیک اور اللہ کی عبادت کرنے والی تہجد گزار، عبادت پسند پردہ دار عورت تھی اور ایک نیک شخص کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے پاس لوگ دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتاتی اور دین کی تبلیغ کیا کرتی۔ لوگ اس کی بہت زیادہ عزت کی کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کے ہوتے ہوئے کبھی کسی نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھا کر دیکھا۔ وہ عورت بہت ہی نیک اور خوبصورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد وہ اکیلی ہی رہتی۔ اس کے اوپر کسی مرد کا سایہ، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، نہ ماں باپ کا سایہ تھا۔ وہ اکیلی ہی اس گھر میں اپنی زندگی گزار رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکاری مشغول رہتی۔ وہاں بستی والوں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد اب لوگ مجھ پر الزام بھی لگا سکتے ہیں، جینا حرام بھی کر سکتے ہیں، بری نظر سے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن اسے اللہ کی ذات پر بھی بہت زیادہ یقین اور توکل تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ شوہر کے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، مگر شوہر کے وفات کے بعد اس نے کسی نہ کسی کام کے لیے اس کو جانا پڑتا تھا۔ سارا دن وہ روزے سے رہتی، رات کو لمبے لمبے سجدے کرتی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلی تو اس بستی میں ایک بہت ہی امیر شخص تھا۔ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو اس کا دیوانہ ہو گیا اور وہ بہانے سے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ عورت اپنے کام سے کام رکھتی اور گھر واپس آ جاتی۔ ایک مرتبہ اللہ کا کرم ایسا ہوا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی۔ راستے میں جا رہی تھی کہ راستے میں ایک چھوٹا سا کتا ملا جو بہت زیادہ زخمی تھا۔ وہ اس کو گھر لے آئی، اس کی مرہم پٹی کی، اس کی دیکھ بھال کی، اور کچھ ہی دنوں میں وہ کتا بہت ہی صحت مند ہو گیا۔ اس کتے کی وجہ سے وہ کافی مصروف رہنے لگی، اس کے ساتھ باتیں کرتی، دل کا بوجھ ہلکا کرتی، اپنی ساری پریشانیاں اس کو بتاتی۔ آہستہ آہستہ وہ کتا بڑا ہو گیا۔ اب وہ کتا بھی اس عورت سے بہت زیادہ مانوس ہو چکا تھا۔ وہ عورت بھی اس کتے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کتے میں ایک بہت بڑی خاص بات یہ تھی کہ وہ عورت جس کمرے میں نماز پڑھتی تھی اس کمرے میں وہ نہیں جایا کرتا تھا۔ وہ کتا بڑا ہو گیا مگر وہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ ہمیشہ گھر کے اندر رہتا تھا۔ اس عورت کا بہت ہی ہمدرد بن چکا تھا۔ وہ عورت اس سے اپنا ہر دکھ درد شیئر کرتی۔ وہ جب بھی گھر سے باہر جاتی مردوں کی نظر جھک جاتی، مگر اس امیر شخص کی نظر اس پر رہتی۔ وہ بہت زیادہ امیر تھا۔ رات کو لڑکیوں سے جنا کرنا اس کا شوق تھا۔ بہت زیادہ پیسے والا تھا، پیسے دیتا اور لڑکیوں سے بات کاری کرتا۔ اس کا شوق بن چکا تھا اور عورتیں بھی پیسوں کی خاطر اس کی ہر بات مان لیتی اور بات کاری کے لیے تیار ہو جاتی، مگر وہ عورت بہت زیادہ نیک اور شریف عورت تھی۔ ایک دن اس آدمی نے اس عورت کے یہاں اپنے ملازم کو بھیجا اور کہا، اس عورت کو کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔ عورت نے اس کے ملازم کو کہا کہ اس کو جا کر کہو میں غیر مردوں سے ملا نہیں کرتی۔ اس ملازمت جا کر اس آدمی کو یہی جواب دیا اور وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور کہنے لگا، آج تک کسی بھی عورت نے مجھے منع نہیں کیا تھا، یہ کون ہے جو مجھے دھتکا رہی ہے؟ وہ اس کے دروازے پر گیا، دروازہ بجایا۔ عورت نے پوچھا کہ کون ہے؟ وہ کہنے لگا، اس بستی کا امیر ترین آدمی ہوں۔ اس عورت نے کہا، امیر ہو، غریب ہو، نواب کا بیٹا ہو یا کوئی شہزادہ ہو، میں کسی کو نہیں جانتی، تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ اس نے کہا، میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے تم جتنی چاہو گی میں تمہیں دولت دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا، اگر محبت ہو گئی ہے تو پھر مجھ سے شادی کرو، اس طرح جناخاری کی دعوت نہ دو۔ اس نے کہا، میری پہلے ہی 4 بیویاں ہیں جو جہیز میں بہت زیادہ مال دولت پیسہ لے کر آئی ہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا، تمہیں دنیا کی ہر چیز دوں گا
मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा कि अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, यह पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वह औरत उसका चेहरा देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठाकर ले आए, और उसके आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे तो ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा उठाकर बाहर फेंक रही थी। वह घर के अंदर दाखिल ही नहीं हो रहे थे और आकर यह पूरी बात अपने मालिक को बताई। उन्होंने कहा, वह कोई आम औरत नहीं है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। वह बहुत ही खतरनाक औरत है। उसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहां की कुछ अमीर लोगों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीनो जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की, मगर वह मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह से हासिल कर सकते हो। फिर जब वह हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बातकारी कर लेंगे। सब बारी बारी उसके घर के पास गए, मगर वह औरत उन शैतानों को दरवाजे से वापस भेज देती। वह सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वह औरत किसी के हाथ में भी आने वाली नहीं है। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके, मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। यह पूरी बस्ती इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करती है, इसको बहुत ज्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ जाहिर करेंगे, सब लोग उस पर लानत भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते, अजीब अजीब आवाजें निकालते, ताने देते, उसके घर के सामने कोई चीज रख देते, कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो होकर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज सुनी। ये आवाज सुनकर वह हैरान रह गए। वह रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही? क्योंकि औरत इस कुत्ते के साथ जिनाह करती है। अस्तगफिरुल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता यह बात इन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती की हर औरत, हर मर्द तौबा तौबा करने लगा। वहाँ के लोग, औरतें कहने लगी कि इसलिए हम कहते थे कि यह औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यह एक कुत्ते के साथ बातकारी करती है। अब वह औरत अपनी नेक नाम इबादत गुजारी और अल्लाह ताला के जिक्र अजक की वजह से उस बस्ती में बहुत ज्यादा मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग उसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे, सजदे में गिरकर। वह अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया। उस औरत के दर्द से बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरी रही और अल्लाह ताला से कहने लगी कि या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तू मुझे माफ कर दे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्जाम लगाए। या अल्लाह, तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इससे ज्यादा इंसान की क्या तजालिल होगी कि वह एक मेजबान कुत्ते के साथ जीना खौरी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। वह अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते, तमाम लोग बड़ी ही इज्जत एहतराम से मान लेते। अब उस रईस ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहाँ से निकलवाना होगा और उसके लिए हमें उस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा और वह हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखती हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वह पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फलां औरत बहुत ही बदकर है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारियों में एक कुत्ते को भी छोड़ा नहीं और हम चाहते हैं
کہ اس کو संसार कर दिया जाए, उस औरत को लहू लहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वह है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से इस बस्ती से उसको निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल दिया। जाओ उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द उस औरत को बुला कर लाने गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको वक्त के काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वह मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहां होना बहुत जरूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया जिसके बारे में कोई बस्ती वाला भी नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वह औरत आ चुकी है, वह अंदर गए और जाकर उस औरत को कहने लगे, ऐ औरत, क्या तू कुत्ते के साथ जीनाकारी करती है? ये सुनकर वह औरत रोना लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वह सही करेंगे। वह अल्लाह वाले बाहर आए और वह रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस रईस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी को पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से उस औरत ने जिना किया था, कुत्ता किस रंग का था? वह आदमी एकदम डर गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। वह कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी बड़ा सोच समझकर जवाब दिया और कहने लगा, कुत्ता सुर्ख रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने भी यही जवाब दिया कि कुत्ता सफ़ेद कलर का था। चौथे को बुलाया, उसने भी यही सवाल पूछा गया और उसने इसका जवाब दिया कि उसका रंग खाकी था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत उस कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की पटी रह गई कि यह यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी, उस कुत्ते का रंग ना काला था, ना लाल था, ना सफ़ेद था, ना खाकी था, बल्कि वह तमाम रंगों से बना हुआ था। अल्लाह वाले को यह सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्ज़ाम ना लगाते, उस पर बहतान ना लगाते, तो शायद जो आज सज़ा तुम लोग को मिलने वाली है वह तुम्हें ना मिलती। वह आदमी कहने लगा, हम सच बोल रहे हैं। एक तवायफ है, जिनकारी है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वह अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सबने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वह आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, गवाही और कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, गवाही जिसके साथ यह औरत जीना करती थी, वहाँ वह रईस आदमी। यह सुनकर तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, आपकी बहुत ज्यादा हम इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। एक कुत्ता इस औरत की कैसे गवाही दे सकता है? वह अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज्यादती हो रही हो। फिर यह कुत्ता तो क्या परिंदे, पहाड़, जमीन, हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि अल्लाह जब जबान देने पे आता है, जानवर क्या चीज है, बेजान चीज में भी जबान डाल देता है। अल्लाह वाले ने 2 रकात नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहता है। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, उस पर जीनकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी, एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा। इसलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है, यह पाक साफ औरत है, हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाए हैं, संसार उन लोगों को करना चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। अगर किसी पाक नेक पाकीज़ा औरत पर इल्जाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, संसार किया जाए, यह बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर फर्द इनको पत्थर मारे और फिर उल्टा लटककर इनको कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने यह फैसला कबूल किया। अल्लाह वाले के हाँ में हाँ मिलाई वो औरत। यह फैसला सुनकर जारो कतार रोने लगी कि अल्लाह पाक ने किस तरह उसकी मदद की। उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो चारों आदमी रोने लगे कि हमें माफ कर दें, हमने बहुत ज्यादती की है। उस औरत पर हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी नहीं करेंगे। उस अल्लाह वाले ने कहा कि इस दरबार में जो फैसला होता है वह अटल होता है, इसलिए तुम लोगों को संसार कर दिया जाए।
اب ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور پھر الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، کسی پر الزام یا تہمت لگانا اللہ کے یہاں قابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، ایسا الزام جھوٹا لگایا یا جھوٹی بات کہی جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن دوزخ کی پیپ میں ڈال دے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں اور جاتے جاتے ایک لائک اور ایک کمنٹ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔